बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ़ से सबको मैं सलाम पेश करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं और मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं। तो आज जो है मैं इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामियात और इस्लामिक कल्चर और पास्ट पेपर जो हैं मुस्लिम हिस्ट्री उससे हटकर जो है या एम अरबिक उससे हटकर आज जो है मैं JEST सखर IBA टेस्टिंग सर्विस 2018 नवंबर 18 तारीख का पास्ट का पेपर जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों की गुजारिश के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पास्ट का पेपर जो है आप इसको पसंद करेंगे और इन्जॉय करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और जो आपकी जायज़ जो हैं वो आपकी कमेंट्स जो आपके होंगे इंशाल्लाह मैं उनको रिस्पॉन्स दे दूँगा। जैसे कोई और पास्ट पेपर बनाना हो तो आप वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करके उसको ठीक तरह से जो है वो मैं हल करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा नंबर है 0301 28 27 304। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है, सब्जेक्ट रिलेटेड है, इंग्लिश सेक्शन है। इसमें इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर है, मैथ है, और 20 क्वेश्चन पेडागॉजी के हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं वो जीके के हैं, और 20 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के हैं। तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल पॉजिटिव आप कमेंट्स दें। तो ये है पैसेज, पहले पैसेज है फॉर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो प्लीज़ read the following passage carefully and answer the first 15 questions set below it. Synonyms and antonyms of the underlined words are mainly said in multiple choices based on contextual meaning of words used in the passage. तो इस पैसेज में से जो है वो 15 सवाल हैं। तो अब मैं स्टार्ट पैसेज पहले पढ़ूँगा, तो फिर उसके बाद जो है आप इनमें से जो रिलेटेड क्वेश्चन हो आप उसको जो है इस पैसेज में ही निकलेंगे। तो मैं पैसेज आप ध्यान से सुने, मैं पढ़ रहा हूँ। देयर हैव बीन many great people who lived for others. They served humanity selflessly, body and soul. Their humanitarian services were so noble that they are paid tribute even long after their death. Their valuable services helped reduce suffering and improve conditions that people lived in. We come across such great souls among the people even in these hard times. People remember them respectfully and pay them heartfelt compliments. They are extremely grateful to these altruists and philanthropists and charities. Such friends of humanity become immortal and legendary figures in the annals of human history. They are paid homage long after they are no more with us. One of the greatest person who ever lived for humanity at large was Abdul Sattar Idi, best known as the Angel of Mercy. He started his humanitarian work in 1951 by establishing a very small dispensary in Karachi. Karachi is the heart of Sindh. He was mainly brought up by his mother, who according to Idi had a great influence on his life. But other members of his family also contributed in shaping his life, including his father and grandfather. However, the person who
apparently made Abdul Sattar Idi the man he became was his mother. He was particularly caring where the old, handicapped, or mentally challenged people were concerned. He learned about love and care from his mother. His mother ensured that he did not waste his time. She was of the view that no one should sit at home idly. Everyone should work to earn a living. After his mother's death, Idi decided to dedicate his whole life to the service of humanity. He bought an old wagon and converted it into an ambulance. This was the first ambulance service of the poor people. He did not he did not charge for the ambulance service. He even started a funeral service which picked up human bodies found abandoned in the sea or at the roadside. He would even pick up these bodies himself. The ambulance service and the funeral service provided Idi Foundation an excellent opportunity to grow all over Pakistan. Idi changed his lifestyle for the mission. He changed for others. He never lost his positive attitude and confident outlook. He believed in simple living and high thinking. He gave a best example of simplicity, austerity, and economy. Idi died in Karachi about 2 years ago. Means uh, the man is gone, but the mission will continue to serve humanity. He was taken as a legend in his life and became immortal in the history of Pakistan. He was the first common citizen of Pakistan who received a state funeral. तो पैसेज के पढ़ने के बाद, गौर फिक्र करने के बाद जो है, हम अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ राइटिंग कुछ धीमी लिखी हुई है, लेकिन मैं दुरुस्त पढ़ने की कोशिश करता हूँ और कोशिश की भी है। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज़ मेनली अबाउट, मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बताऊँगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। मैं यहाँ से पेन उठा लूँ मार्ग निशान करने के लिए। जनरल तो ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल हु लिव्ड फॉर अदर्स। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। द अंडरलाइन वर्ड्स altruist, philanthropists and charities appearing in the of the first paragraph are almost dash in meaning। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो है सी, सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 3 है। Idi's mother was very particular about, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आते हैं। द अंडरलाइंड वर्ड्स tribute and homage used in the first paragraph are almost, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, synonyms of others। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ओवरऑल इंफॉर्मेशन दैट द पैसेज गिव्स इज अबाउट, करेक्ट ऑप्शन है सी, बायोग्राफी एंड
achievements of a legend. तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सिनोनिम्स बताते हैं। They served humanity selflessly, body and soul. तो उसका सिनोनिम है unselfishly, unselfishly। ये यहाँ जो लिखा हुआ है ये है unselfishly। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। We come across such great souls among the people even in these hard times। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, to meet or find somebody by chance। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। People remember them respectfully and pay them heartfelt compliments। तो करेक्ट ऑप्शन सी है सिंसियर। क्वेश्चन नंबर 9 है। Other members of his family also contributed in shaping his life। तो करेक्ट ऑप्शन है ए shaped। क्वेश्चन नंबर 10 है। He was particularly caring where the old handicapped people were concerned। तो करेक्ट ऑप्शन है काइंड, द डी, काइंड एंड हेल्पफुल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पर आते हैं जो एंटोनिम्स हैं। दे आर वैल्यूबल सर्विसेज हेल्प रिड्यूस सफरिंग एंड इम्प्रूव कंडीशंस दैट पीपल लिव्ड इन। तो करेक्ट ऑप्शन बी है वैल्यूलेस। ये एंटोनिम्स बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। हिज मदर ensured that he did not waste his time। तो करेक्ट ऑप्शन सी है सेव। क्वेश्चन नंबर 13 है। She was of the view that no one should sit at home idly। तो करेक्ट ऑप्शन डी है busily। क्वेश्चन नंबर 14 है। Everyone should earn his living। करेक्ट ऑप्शन सी है spend। क्वेश्चन नंबर 15 है। This was the first ambulance service for the poor people। करेक्ट ऑप्शन ए है this service। क्वेश्चन नंबर अब हम 16 पर आते हैं। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। इंस्ट्रक्शंस भी मैं पढ़ देता हूँ। 5 sentences are given below. In each sentence you have to put a correct preposition. Choose a correct preposition for every sentence and shade it answer A, B, C or D against the corresponding number in the answer sheet। क्वेश्चन नंबर 16 है। The toy car roll it dash the chair। तो करेक्ट ऑप्शन सी है अराउंड। क्वेश्चन नंबर 17 है। द बॉयज लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर रनिंग dash the road। तो करेक्ट ऑप्शन बी है क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 18 है। मैनी ट्रीज हैव बीन प्लांटेड और dash the street। करेक्ट ऑप्शन ए है along। क्वेश्चन नंबर 19 है। walk dash this tunnel to get to the other side। तो करेक्ट ऑप्शन 19 का डी है थ्रो।
क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। शी pinned a piece of blank paper dash her poster। तो करेक्ट ऑप्शन ए है टू। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, जो मैथ सेक्शन है। अब हम मैथ सेक्शन पर आते हैं तो उसको जो है क्वेश्चन नंबर 21 है मैथ सेक्शन में। द हाई टेम्परेचर फॉर अ 5-day पीरियड वर एज फॉलोज। ये देखें, मंडे 75 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे 82 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेडनेसडे 78 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्सडे 84 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ्राइडे 81 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट वाज द मीन एवरेज हाई टेम्परेचर फॉर द 5 days पीरियड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर हम 22 पर आते हैं। Tom and angle triangle marbles. Bob has 10 marbles. Tom has 3 more marbles than Bob. Which number sentence is correct? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, एंगल ट्रायंगल -3 इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर हम 23 पर आते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। ये आप देख दें, जो स्क्वायर बना हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, क्योंकि 4, 12 और 2 जो है वो प्राइम्स नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। द एक्चुअल विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर cm। यूज द स्केल ड्राइंग ऑफ द रेक्टेंगल टू फाइंड द एक्चुअल लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 54 सेंटीमीटर। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। आ रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ x पावर 3 minus x plus 2 and a width of x plus x power 2. What is the area of the rectangle when x is equal to 2? करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, 48 स्क्वायर इंच। क्वेश्चन नंबर 26 है। रिक एंड टॉड bought a pizza from the Grab. Determine about how much of the pizza Rick ate and how much Todd ate. ये देखें, ये रिक और ये टॉड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, रिक 25 out of 100 and Todd 75 out of 100। क्वेश्चन नंबर हम 27 पर आते हैं। विच शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स बेस्ट शोज ए, सी, बी, डी। ये देखें, एन इंसेक्ट पॉपुलेशन इन द लैब हैज 216 insects. If the population doubles, how many insects will there be? करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ए, 2 और 17। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। इफ ए इज इक्वल टू पी प्लस पार्ट देन टी इक्वल्स। इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है डी, ए माइनस पी अपॉन पी आर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद हम 30 पर आएंगे। लुक एट दिस मॉडल, इस मॉडल को देखें।
E represents 1. तो which expression is shown by the model? Which expression is shown by the model? तो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, 3x+2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है मैथ के 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पूरे हुए पैसेज के साथ, फिर 10 क्वेश्चन जो है वो फिगर के साथ मैथ के पूरे हुए। अब है जनरल साइंस सेक्शन। जनरल साइंस सेक्शन में क्या आएगा भाई, मैंने पहले बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर। तो ये मेरे ख्याल में 40 सवाल ये भी हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और rotating which uniform angular velocity it has? तो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। which one is bigger unit of energy? तो करेक्ट ऑप्शन बी है किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर हम 33 पर आते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट corresponds to, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर हम 34 पर आते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ सॉलिड मेटल कंडक्टर इज अ मूवमेंट ऑफ, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर हम 35 पर आते हैं। यहाँ पर जो है वो धुंधली राइटिंग है, साफ नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोशिश करते हैं। मूविंग शेयर्स विल गेन एनर्जी एप्लीकेशंस ऑफ, ये साफ नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ, वो है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। व्हेन अ चार्ज यूनिफॉर्म बताना, ये फील्ड एनर्जी, तो मैंने इसका ऑप्शन तो मालूम किया है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट्स आर, करेक्ट ऑप्शन है सी, 3। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। इफ़ अ बुक to satisfactory on the table, then forces acting on it are, तो करेक्ट ऑप्शन ए है, मेरे ख्याल में ये बैलेंस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है। द phenomenon of dispersion या dispersion of light can be observed experimentally by passing a value light through, तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है डी। तो हम क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, तो क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। अ फार्मूला दैट गिव्स ओनली द simplest relative number of each type of atoms present in a molecule, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। क्वेश्चन नंबर हम 42 पर आते हैं। which type of the following chemical equation is Ca2 plus CO2 डैश, और ये है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 43, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल इंडिविजिबल इन पता नहीं पर्टिकुलर कॉल्ड एटम्स इज गिवन बाय, तो बस करेक्ट जो ऑप्शन है 42 का वो है ए। अब हम क्वेश्चन नंबर
44 पर आएंगे। इन मॉडर्न क्वेश्चन नंबर 44 पर आएंगे। इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर? तो करेक्ट ऑप्शन सी है 7। क्वेश्चन नंबर 45 पर आएंगे। द एटॉमिक प्रॉपर्टी दैट डिफाइन अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसेस एटम इन इट ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड? तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बी, करेक्ट ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो करेक्ट नंबर 46 पर आते हैं। द म्यूचुअली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच लिंक्स द एटम इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज? तो करेक्ट ऑप्शन डी है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हम आते हैं अभी 47 पर। 47 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें है कि ग्रेफियम्स इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर अब हम 48 पर आते हैं। द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैस इज कॉल्ड? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 49 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन? तो करेक्ट ऑप्शन सी है, डायमंड। क्वेश्चन नंबर हम 50 पर आते हैं। विच वन इज नोन एज किंग ऑफ कंपाउंड्स? किंग ऑफ कंपाउंड्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, H2SO4। सो 51 है। फॉलोइंग आर द constituent of polluted air cause of rain except dash? तो करेक्ट ऑप्शन जो है 51 का वो डी है, आर्गोन। क्वेश्चन नंबर अब हम 52 पर आते हैं। द टाइंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन? तो करेक्ट ऑप्शन वो बी है, सॉल्यूशंस एंड कोलोइड्स। क्वेश्चन नंबर 53 है। द स्ट्रक्चर इन सेल विच differentiate between prokaryote एंड क्या लिखा हुआ है यूकेरियोट इज? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर अब हम 54 पर आते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो? आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो ए, न्यूरॉन। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। ट्यूबरकुलोसिस TB इज बैक्टीरियल डिजीज caused by mycobacterium which of the following is not symptom of TB? तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है डी, फैट गेन। क्वेश्चन नंबर अब हम 56 पर आते हैं। which of the following organism can breathe through skin? breathe through skin। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, फ्रॉग। ब्रीथ थ्रू स्किन। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस
diaphragm play a key role. Where does diaphragm move during inhalation? तो करेक्ट ऑप्शन है 57 का बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, मूव डाउनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्ट बाय बॉडी अगेंस्ट डिजीज काजिंग एजेंट्स? तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है सी करेक्ट ऑप्शन है, एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर अब हम 59 पर आते हैं, द फंक्शन ऑफ the function of exhaust gas. The function of exhaust gas is digestive system is to. तो करेक्ट ऑप्शन डी है, pass the food of the stomach. क्वेश्चन नंबर 60 है, chemicals that are used to get rid of insects that eat plants and crops are called. तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बी, पेस्टिसाइड्स। अब हम 30 क्वेश्चन साइंस के हो गए, 10 बायोलॉजी के, 10 केमिस्ट्री के और 10 फिजिक्स के, तो 10 के कंप्यूटर के बातें हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट? तो करेक्ट ऑप्शन ए है, विंडोज़। क्वेश्चन नंबर अब हम 62 पर आते हैं, डैश इज द बिट बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रिसोर्स मैनेजर। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर हम 63 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 ये पहले गुजर चुका है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63 शायद के इसमें नहीं है, मैंने पीडीएफ में तो बनाया था। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 71 पर आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन ये जनरल नॉलेज है। द स्विस कैनाल कनेक्ट्स द, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी, स्विस कैनाल। क्वेश्चन नंबर 72 है, द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, तो करेक्ट ऑप्शन डी है, बर्लिन। अब हम क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं, नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनिज्म इज एन डैश अलायंस, तो करेक्ट ऑप्शन ए है, मिलिट्री। क्वेश्चन नंबर 74 है, येन इज द करेंसी ऑफ डैश कंट्री, तो करेक्ट ऑप्शन बी है, जापान। अब हम क्वेश्चन नंबर 70 मेरे ख्याल में तो चाइना का भी है, चाइना की भी कंट्री यही है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू डैश फैमिली, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हाशिमी है। क्वेश्चन नंबर अब हम 76 पर आते हैं, द 2022 फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय डैश, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, कतर। क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट इज नेम टू रन बिटवीन सफ़ा एंड मरवा, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, साई। क्वेश्चन नंबर 78 है, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर थिकनेस प्योरिटी ऑफ मिल्क इज, तो करेक्ट ऑप्शन बी है, लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर
79 है द कैपिटल ऑफ आइसलैंड इज रिकजाविक। करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 है ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट इज। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, अल्ट्रावायलेट रेज। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पेडागॉजी पर आते हैं। असाइनमेंट और एजुकेशन पर जो है, असाइनमेंट और एजुकेशन पर है। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल द बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर इज द डैश ऑफ द स्कूल। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ए, करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 82 है द करिकुलम शुड बी डैश ऑन कोऑपरेटिव बेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन है फार्मूला टेट। क्वेश्चन नंबर अब हम 83 पर आते हैं द स्टाफ शुड examine the program continuously with under the dash of the principal। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, लीडरशिप। अब हम क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं द साइंटिफिक डिपार्टमेंट इन वेरियस फील्ड्स इज ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ एडवाइजिंग द गवर्नमेंट बाय द नेशनल। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 85 है एजुकेशन लिखा है वर अटैच्ड टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द देश। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो डी है इसका, प्रोविंसेस। तो हम क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 पर आते हैं एन असाइनमेंट इज डैश इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट्स विद द सेम स्टूडेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, रिलायबल। क्वेश्चन नंबर 87 है ए ऑब्लिक एन डैश असाइनमेंट इज वन व्हिच measures that it is intended to measure। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ए, वैलिड। क्वेश्चन नंबर 88 है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी to enhance learning process is called dash in education। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, ICT। क्वेश्चन नंबर 89 है टीचर्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द डैश प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन ए है, स्टडी। क्वेश्चन नंबर 90 है चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डैश द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल। तो करेक्ट ऑप्शन बी है, एक्सपीरियंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं डायग्नोस्टिक असाइनमेंट एक्सेस स्टूडेंट्स। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, एग्जिटिंग लर्निंग लेवल। क्वेश्चन नंबर 92 है सिम्युलेटिव असाइनमेंट एक्सेस स्टूडेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन ए है, प्रोग्रेस एट द एंड लर्न ईयर। क्वेश्चन नंबर अब 93 है फॉर्मेटिव असाइनमेंट इज मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग। करेक्ट ऑप्शन ए है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 94 है सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम इज फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय USAID। क्वेश्चन नंबर 95 है रिटेंशन रेट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन चिल्ड्रन। तो करेक्ट ऑप्शन ए है,
मूव फ्रॉम अ लोअर ग्रेड टू अपर ग्रेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं। द percentage of grade specific age children enrolled in the same grade is called, correct option B है net enrollment rate। क्वेश्चन नंबर अब हम 97 पर आएंगे। 97 एज पर स्कूल्स consolation policy, the administrative head of the campus school will be, करेक्ट ऑप्शन बी है प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 98 पर अब हम आते हैं। द लेवल ऑफ कंसोलिडेटेड स्कूल विल बी डिसाइडेड, करेक्ट ऑप्शन सी है, ऑन द basis of highest grade level taught in the school। क्वेश्चन नंबर अब 99 है। A shared vision of a school is designed and owned by C, community, school leadership, teachers and students। अब क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट जो है, the core business and the center of school relatives is learning of everyone in the school। दोस्तों आज जो है हमारे पास्ट पेपर 18 नवंबर 2018 का कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ और मैं आपसे नेक तमन्ना नेक ख्वाहिशों की उम्मीद करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी इसको एडवाइस देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।